Assalamu alaikum dear students. It's our 13th lecture of classical mechanics and I am your instructor Dr. Burhan Zamir. So our today's lecture is related with a new chapter named canonical transformations. But before going into details of this topic, today we study Poisson brackets, which is a mathematical tool to understand the canonical transformations. From Hamilton's equations, we can find the equation of motion for any function of qi, generalized coordinates, pi, generalized momenta, and time by using Poisson brackets. The Poisson bracket of any two functions f and g is defined as the Poisson. This bracket is called Poisson bracket of two functions f and g, and this is equal to the product of the partial derivative of function f with respect to generalized coordinates and the partial derivative of function g with respect to generalized momentum minus the product of the partial derivative of the function f with respect to pi and the partial derivative of function g with respect to generalized coordinates qi. The Poisson brackets do not give a complete solution of a system of motion but are very helpful in finding the integrals of motion. The Poisson brackets also provide the most direct transition between classical mechanics and quantum mechanics. Now we see what is integral of motion. A function of the coordinates which is constant along a trajectory in phase space is called integral of motion. The number of degrees of freedom of a dynamical system can be decreased by 1 if an integral of motion can be found. In general, it is very difficult to discover integrals of motion, but Poisson bracket helps us to find integrals of motion. Now, what is phase space? For a mechanical system, the phase space usually consists of all possible values of position and momentum variables. That is a space extended by the n generalized coordinates qi and n generalized momenta pi. तो बेसिकली फेज स्पेस क्या है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स की ऐसी स्पेस है जिसमें हम हैमिल्टन इक्वेशंस को लिखते हैं. आपने देखा है कि हैमिल्टन इक्वेशंस बेस करती हैं दो वेरिएबल्स यानी क्यू आई और पी आई पर. तो ये इक्वेशंस जिस स्पेस में होल्ड करती हैं वो एक 2n डायमेंशनल स्पेस है. यहाँ 2n में जो n है वो स्मॉल n है क्योंकि आपको पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्मॉल n क्वांटिटी में होते हैं. तो जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही जनरलाइज मोमेंटम होंगे. तो इस वजह से हम कहते हैं कि द स्पेस विच इज़ एक्सटेंडेड बाय द generalized coordinates qi and the momentum pi is known as phase space. This space is only defined because we write the Hamilton equations in this space. In mathematics and physics, a phase space of a dynamical system is a space in which all possible states of a system are represented, with each possible state of the system corresponding to one unique point in the phase space. The concept of phase space was developed in the late 19th century by Boltzmann and Poincaré and Gibbs. Now we see that Hamilton's equation can also be written in terms of Poisson's brackets. For this, we consider the definition of the Poisson bracket which is given by this expression. अब आप यहाँ f और g जो फंक्शन है जिसमें Poisson bracket डिफाइन हुई है, इसमें आप f फंक्शन की जगह जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लें अगर क्यू आई, तो देखिए आपके पास जो ये फर्स्ट टर्म है ये 1 हो जाएगी क्योंकि f की जगह क्यू आई रखेंगे आप, पार्शल क्यू आई ओवर पार्शल क्यू आई 1 हो जाएगा और ये सेकंड टर्म जो है ना एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास यहाँ. और नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनमें f को क्यू आई रखेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू पी आई दिस बिकम ज़ीरो
और उसकी वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप f की जगह पी आई रख लें तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा इस डेफिनेशन से। तो अब ये जो दो हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए हैं, इसमें हम g को अगर h से रिप्लेस करें तो हम हैमिल्टन इक्वेशन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। तो ऐसा करते हैं। आप देखिए कि ये हमारे पास हैमिल्टन फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में ये जो पार्शल h ओवर पार्शल पी आई है, वो हम यहाँ से अगर g की जगह h रख लें हम, तो ये पार्शल h ओवर पार्शल पी आई विल बी क्यू आई कोमा h। तो हमारे पास ये क्यू आई कोमा h आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट हैमिल्टन इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड हैमिल्टन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस पार्शियल डेरिवेटिव से। अगर g को h से रिप्लेस कर दें तो इट विल बी पी आई कोमा h। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइसन इक्वेशन है, सेकंड हैमिल्टन इक्वेशन है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से हैमिल्टन इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट लिख लिया। तो ये जो पॉइसन ब्रैकेट है ये हमने इसको समझना है, इसको मैथमेटिकल टूल के तौर पर हमने लेना है। और नेक्स्ट जो हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें ये यूज़ होगी। उसके अलावा पॉइसन ब्रैकेट से हम इंटीग्रल ऑफ मोशन फाइंड करना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पॉइसन ब्रैकेट का अलजबरा क्या है, यानी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये मैंने स्ट्रेट कर दी हैं यहाँ पर, इनको आपने प्रूव करना है। इनके प्रूफ बहुत सिंपल और स्मॉल मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ आ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल मैथमेटिक्स होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, आपने इनको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि आपके पॉइसन ब्रैकेट के जो फंक्शंस हैं उनको अगर आप इंटरचेंज कर दें तो आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। पॉइसन ब्रैकेट ऑफ द सेम टू फंक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। और पॉइसन ब्रैकेट ऑफ अ फंक्शन g विद अ सम इज़ इक्वल टू द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ g विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सम प्लस द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ g विद द सेकंड फंक्शन ऑफ द सम। इसी तरह से पॉइसन ब्रैकेट ऑफ अ फंक्शन विद g विद द प्रोडक्ट f1 f2, दिस इज़ इक्वल टू f1 मल्टीप्लाई बाय the Poisson bracket of f2 with g plus f2 multiply by the bracket of f1 with g। और in the same way ये जिस तरह से अभी हमने हैमिल्टन इक्वेशंस में लिखा था ये उसी तरह से आपके पास आ सकता है। और ये सेकंड जो है ये भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। और ये आप देख लें कि दो डिफरेंट जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे क्यू आई एंड क्यू जे, उनकी ब्रैकेट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। इसी तरह से पॉइसन ब्रैकेट ऑफ मोमेंटम पी आई विद पी जे इज़ ज़ीरो, बट द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई विद पी जे इज़ इक्वल टू डेल्टा आई जे विच इज़ द क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन। और आपको पता है क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन क्या होता है कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे then this function will be equal to 1, but if I is not equal to j then this function is equal to 0. In the next property, the time derivative of the Poisson bracket is equal to the sum of two Poisson brackets. In the first bracket we have the time derivative of the function first function, and in the second bracket we have the time derivative of the second function. And the total time derivative of the function f is equal to the Poisson bracket of f and with the Hamiltonian h plus the partial time derivative of the function f। ये हम प्रूफ करेंगे, ये आप लोगों ने प्रूव नहीं करनी है प्रॉपर्टी, अभी कुछ देर में मैं प्रूफ करूँगा। फर्दर if we take the sum of Poisson brackets of the three functions in the cyclic order as written here, this sum is always equal to 0,
This is a very important property called Jacobian property. Now we see that how Poisson bracket is used to find the integrals of motion. The Poisson bracket do not give a complete solution, as we already discussed. It does not give the complete solution for a system of motion, but it is helpful to find out the integrals of motion. So this is written in the form of a theorem which is called Poisson's theorem. So let us state and prove this theorem. The total time rate of evolution of any dynamical variable f in the phase space is given by df over dt is equal to partial f over partial t plus Poisson bracket of f dot h. This is the statement of the Poisson theorem, and this is also written as the property of the Poisson bracket in the previous slides. Now let us prove this statement. So to prove this statement of the Poisson's theorem, we take a dynamical function f, a function of qi, pi and t. The time derivative will be partial f over partial t इंटू partial t over partial t होगा, यहाँ वो 1 हो जाएगा, प्लस partial f over partial qi होगा और partial qi over partial t जो है वो qi डॉट बन जाएगा. इसी तरह से पार्शल f ओवर पार्शल पी आई इंटू पार्शल पी आई ओवर पार्शल t होगा जो पी आई डॉट बन जाएगा. ना यूजिंग द हैमिल्टन इक्वेशंस, तो आपको मालूम है कि हैमिल्टन इक्वेशन में पार्शल h ओवर पार्शल पी आई को हम क्यू आई डॉट लिख सकते हैं. तो ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है क्यू आई डॉट, इसको हम पार्शल h ओवर पार्शल पी आई लिख लेते हैं. बिल्कुल इसी तरह से ये जो पी आई डॉट है इसको हम नेगेटिव ऑफ पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू आई लिख सकते हैं. तो ये पी आई डॉट है, इसको हमने यहाँ नेगेटिव ऑफ पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू आई लिख लिया. तो अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स बनी हैं ये एक डिफ़ाइन करती हैं एक पॉइसन ब्रैकेट को, विच इज़ द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ द वेरिएबल फंक्शन एफ एंड एच. सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द पॉइसन्स थ्योरम. Now there are two cases for the statement of the Poisson's theorem. In the first case, if f is integral of motion, then df over dt is equal to 0. तो ये हम इसलिए लिखते हैं कि अगर टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f 0 होगा तो ड्यूरिंग द मोशन f कांस्टेंट रहेगा. तो कांस्टेंट को ही हम इंटेग्रल ऑफ मोशन कहते हैं. अगर कोई फंक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहे तो उसको हम इंटेग्रल ऑफ मोशन कहते हैं. तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन के इंटेग्रल ऑफ मोशन होने की कि उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होता है. और f डज़ नॉट चेंज विथ टाइम, देन फॉर f टू बी इंटेग्रल ऑफ मोशन पार्शल f ओवर पार्शल t प्लस ब्रैकेट f कॉमा h. ये जो लास्ट जो हमने प्रूफ किया था कि ये सम जो है ये df ओवर dt होता है. तो अब df ओवर dt जो है वो तो ज़ीरो होगा फॉर कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो यहाँ ये ज़ीरो आ जाएगा. तो ये एक कंडीशन बन गई कि अंडर दिस कंडीशन द फंक्शन f इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन और इंटेग्रल ऑफ मोशन. इन द सेकंड केस वो हम यहाँ इस केस से ही बना लेंगे कि अगर f जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी पार्शल f ओवर पार्शल t भी ज़ीरो है. ये आप ध्यान में रखिए कि अगर डी एफ ओवर डी टी ज़ीरो हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल टी भी ज़ीरो. तो पार्शल एफ ओवर पार्शल टी उस वक्त ज़ीरो होगा जब आपका जो फंक्शन एफ़ है उसमें एक्सप्लिसिटली टाइम आपको नज़र ही नहीं आ रहा, यानी फंक्शन की जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएबल टी अपीयर ही नहीं होता. तो जब वो अपीयर ही नहीं होगा तो जो और वेरिएबल्स होंगे उनका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो होगा, चाहे वो पार्शल हो या टोटल हो. तो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो. Then from the above statement, for f to be integral of motion, ये तो ज़ीरो हो गया अब हमारे पास, तो हमारी जो ब्रैकेट है दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो ये दो कंडीशन हैं फॉर द फंक्शन f टू बी इंटेग्रल ऑफ मोशन. ये एक फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका f जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड कर रहा हो या आपके फंक्शन में टाइम वेरिएबल t अपीयर हो रहा हो, और ये उस वक़्त है जब आपके पास टाइम t
आपके फंक्शन f में अपीयर नहीं हो रहा हो। तो ये अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि किस तरह से ये अपीयर होता है और नहीं होता। नाउ वी हैव अनदर थ्योरम विच इज़ कॉल्ड जैकोबी-पॉइसॉन्स थ्योरम। ये हमारे पास जो थ्योरम है ये दो डायनामिकल वेरिएबल्स के लिए है। इफ़ f एंड g आर एनी टू इंटेग्रल्स ऑफ मोशन of any dynamical system, their Poisson bracket is also an integral of motion। तो मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारा f फंक्शन भी इंटेग्रल ऑफ मोशन हो, यानी उसका टाइम के साथ कांस्टेंट रहे वो, और g भी आपका जो है वो इंटेग्रल मोशन है, यानी वो भी टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, तो फिर इन दोनों फंक्शन f और g की ब्रैकेट भी इंटेग्रल ऑफ मोशन होगी, यानी वो भी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो ये फर्स्ट टू हमें गिवन है और ये थर्ड जो है ये हमने प्रूफ करना है। सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी दो केस हम लेंगे जैसे पहले लिए। इन द फर्स्ट केस, इफ़ f एंड g डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन टाइम, अगर ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे एक्सप्लिसिटली, यानी इनके पार्शियल टाइम डेरिवेटिव भी ज़ीरो हैं, फिर उस सूरत में ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। एंड इन द सेकंड केस, इफ़ f एंड g डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, अगर वो टाइम पर डिपेंड कर रहे हों एक्सप्लिसिटली, यानी उनके फंक्शंस में टाइम का फंक्शन वेरिएबल अपीयर हो रहा हो, तो उस सूरत में भी हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। जब ये दोनों केसेस के लिए प्रूव हो जाएगा तो फिर ये जनरली हम इसको कहेंगे कि दिस थ्योरम इज़ प्रूव्ड। सो इन द फर्स्ट केस, if f and g do not have any explicit dependence on time, then by Poisson's theorem we have the bracket of function f with the Hamiltonian is 0 and the bracket of the function g with Hamiltonian is equal to 0। तो Poisson theorem के मुताबिक ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगी। तो ये तो हमें गिवन है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या जो आपकी ब्रैकेट है f और g की वो भी इंटेग्रल ऑफ मोशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लेते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटीज़ की स्लाइड पे लास्ट आइडेंटिटी जो देखी थी वो जैकोबी आइडेंटिटी थी, जिसके मुताबिक आपके जो तीन फंक्शंस हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में उनकी ब्रैकेट्स का जो सम है वो ज़ीरो होगा। ये हमने लिख ली। तो इसमें आप देखिए कि g, h तो ज़ीरो है, इस ब्रैकेट से ये ज़ीरो है। तो जब ये ज़ीरो होगा तो किसी भी फंक्शन की ब्रैकेट विद अ ज़ीरो वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो ये पूरी ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह से h, f ज़ीरो है, ये f, h हो या h, f हो, ये ज़ीरो है। तो g की ब्रैकेट जब ज़ीरो के साथ हम लेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ ये एक ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास एक ब्रैकेट। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लें। जैसे हमने यहाँ कहा किसी फंक्शन की जो ब्रैकेट होगी हैमिल्टोनियन के साथ, अगर वो ज़ीरो हो तो वो इंटेग्रल ऑफ मोशन होता है। तो बिल्कुल इसके मुताबिक यहाँ हैमिल्टोनियन के साथ जो ब्रैकेट है वो फंक्शन की तरह आप इसको समझ लें कि ये एक फ़ंक्शन है जो हैमिल्टोनियन के साथ ज़ीरो हो रहा है ब्रैकेट में। तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट भी इंटेग्रल ऑफ मोशन होगी। देयरफॉर फ्रॉम पॉइसन्स थ्योरम वी कैन से दैट the time derivative of bracket is 0 or this bracket is integral of motion or this bracket is a constant of motion. So this is the proof of the first case of Poisson's theorem. Now we prove the second case of this theorem. If f and g depend explicitly on time, तो इस केस में जो Poisson थ्योरम है उसके मुताबिक जो टोटल टाइम डेरिवेटिव है f का वो इस एक्सप्रेशन से लिखा जाएगा और जो टोटल टाइम डेरिवेटिव g का है वो इस एक्सप्रेशन से लिखा जाएगा। और इसी तरह से टोटल टाइम डेरिवेटिव जो है ब्रैकेट का वो भी इसी अंदाज में लिखा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g था तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस g का हैमिल्टोनियन के साथ ब्रैकेट था, इसी तरह से ये ब्रैकेट का हैमिल्टोनियन के साथ ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये टाइम डेरिवेटिव जब इस ब्रैकेट पे लगेगा तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। प्रॉपर्टी के मुताबिक ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव होगा दिस विल बी द सम ऑफ टू ब्रैकेट्स। इन द फर्स्ट ब्रैकेट वी हैव द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद g प्लस द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द टाइम डेरिवेटिव ऑफ g विद ऑफ g। तो ये आ जाएगा
प्लस द सेम ब्रैकेट, ये आ जाएगी एफ जी एंड एच। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 को हमने रख दिया है। अब हम जैकोबी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। जैकोबी आइडेंटिटी से आप अब फेमिलियर हैं। तो इस आइडेंटिटी में 3 ब्रैकेट्स का सम 0 था, तो 2 टर्म्स में दूसरी साइड पर ले गया जो नेगेटिव हो गई हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये ब्रैकेट और हैमिल्टोनियन को मैंने जब इंटरचेंज किया, इनको एक जगह चेंज की इनकी, तो नेगेटिव साइन आ गया। इसी तरह से इस ब्रैकेट में भी इंटरचेंज किया तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन गया, और इसी तरह से थर्ड टर्म में पॉजिटिव बन गया। तो ये नेगेटिव साइन हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब इक्वेशन 1 जो है उसमें जो ब्रैकेट है वो इस तरह की है। अगर आप देखें ये ब्रैकेट जो है ना वहाँ अपीयर हो रही थी, तो इस ब्रैकेट की जगह हम ये नेगेटिव साइन के साथ 2 ब्रैकेट्स पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 कुछ यूँ बन जाएगी। तो ये 2 टर्म्स आ गई हैं नेगेटिव साइन वाली, ये 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें मैंने सिर्फ ये किया कि ये जो ब्रैकेट है इसमें ये एफ़ और एच को जब मैं इंटरचेंज करता हूँ तो ये एफ़ और एच बन जाएगा। तो इनके इंटरचेंज करने से जो नेगेटिव साइन आएगा, तो किसी भी नेगेटिव फंक्शन के साथ जो ब्रैकेट होती है उसका नेगेटिव हम बाहर ले सकते हैं, तो उससे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, सिंपली डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। आप डेफिनेशन में लिख के उसको चेक कर सकते हैं कि जगह चेंज करने से नेगेटिव साइन आए। तो नेगेटिव फंक्शन और पॉजिटिव फंक्शन की ब्रैकेट एक नेगेटिव साइन देती है हमेशा, तो ये हमारे पास उस नेगेटिव साइन से ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि ये 2 कलर्ड ब्रैकेट्स देखें आप, इन पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये थी कि सम की प्रॉपर्टी थी, आपने देखी थी कि अगर एक फंक्शन जी का जो ब्रैकेट है वो एक सम के साथ हो जाए तो फिर 2 ब्रैकेट्स आती हैं। तो इसको रिवर्स इस्तेमाल करूँगा मैं। आप देखें ये जी है, ये भी जी है, तो सम क्या होगा, इस ब्रैकेट का सम होगा पार्शियल एफ और पार्शियल टी के साथ, तो ये सम बन गया। जैसे हमने प्रॉपर्टी में देखा था F1 प्लस F2 लिखा हुआ था, तो ये वो F1 प्लस F2 की तरह सम बन गया विद जी। और ये नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 2 टर्म्स मैंने लिखी थी, इसमें सेकंड टर्म में मैं F को पहले लिख लेता हूँ और ब्रैकेट GH को बाद में लिख लेता हूँ। उससे नेगेटिव साइन आएगा जो ये पॉजिटिव कर देगा। अब ये भी सम हम लिख सकते हैं। देखिए ये F है विद दिस फंक्शन और ये F है विद दिस ब्रैकेट, तो F चूँकि सेम है तो सम वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। F की ब्रैकेट बनेगी सम ऑफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एंड ब्रैकेट GH के साथ, तो ये सम हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये सारी की सारी, ये जो इस केस को हमने स्टार्ट किया था तो पॉइसन थ्योरम के मुताबिक ये सम जो है वो df ओवर dt बन जाएगा। इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है इस ब्रैकेट में, इसमें ये जो सम है ये dg ओवर dt बन जाएगा। तो हमने टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट को इस तरह से लिख लिया है। अब मैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट में जो हमें गिवन था वो मैं यूज़ करूँगा। हमें गिवन था कि df ओवर dt भी 0 है और dg ओवर dt भी 0 है, यानी f और g बोथ आर इंटेग्रल्स ऑफ मोशन। तो इस चीज़ को मैं यूज़ करूँ अगर, तो ये g भी 0 हो जाएगा और ये f भी 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ब्रैकेट में जब एक 0 आ जाए फंक्शन तो ब्रैकेट भी 0 हो जाती है, तो ये भी 0 हो जाएगी और सेकंड भी 0 हो जाएगी, तो दोनों ब्रैकेट 0 होंगी। तो हमारे पास d ओवर dt ऑफ द ब्रैकेट एफ जी इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो ब्रैकेट है एफ जी, दिस इज़ इंटेग्रल ऑफ मोशन। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर f और g का टाइम डेरिवेटिव 0 हो, यानी वो दोनों इंटेग्रल ऑफ मोशन हो, तो फिर ब्रैकेट ऑफ दीज 2 फंक्शंस f एंड g बोथ इनका जो टाइम डेरिवेटिव है वो भी 0 होगा और ये ब्रैकेट भी इंटेग्रल ऑफ मोशन होगी। तो ये जो थ्योरम हमने डिस्कस किए इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, क्वेश्चन है, इफ़ h इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन एंड f इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन देन शो दैट f इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो पहले तो आपने ये देखना है कांस्टेंट ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए कि हमारा जो फंक्शन f है क्या वो टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इसमें देखें कि इसमें टाइम है, ये t जो है
ये प्रोडक्ट में आ रहा है इस ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज़ एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो फिर हम जो कंडीशन हमने प्रूव करनी है फॉर द फंक्शन एफ टू बी इंटेग्रल ऑफ मोशन, वो अकॉर्डिंग टू द पॉइसॉन्स थ्योरम वो ये कंडीशन होगी। तो अगर ये टाइम यहाँ ना होता तो फिर वो कंडीशन जो है उसमें सिर्फ ये ब्रैकेट ज़ीरो होती, ये फर्स्ट टर्म नहीं होनी थी। आपने ये दो थ्योरम के केसेस पढ़े हुए हैं। तो अब हमारे पास जब चूँकि हमने प्रूव करना है कि एफ़ कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो इसके लिए मैं ये दोनों जो टर्म्स हैं ये फाइंड करूँगा। तो फर्स्ट टर्म में पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी यानी टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन सारा ज़ीरो हो जाएगा और ये टाइम का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये ब्रैकेट आ जाएगी इस तरह से विद अ नेगेटिव साइन। और ये जो सेकंड टर्म है ब्रैकेट, ये भी फाइंड करते हैं। तो ब्रैकेट की डेफिनेशन ये है, इसमें फंक्शन एफ हमें गिवन है तो हम ये चारों टर्म्स जो है ये फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू ये आ जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आ जाएगा। इसी तरह से एफ़ का डेरिवेटिव पी के विद रिस्पेक्ट और एच का डेरिवेटिव क्यू के विद रिस्पेक्ट, ये चारों टर्म्स हमने फाइंड कर ली क्योंकि हमें फंक्शन एफ़ और एच दोनों मालूम है। तो हम इसमें पुट करते हैं ये टर्म्स। तो इनको पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास इंटेग्रल ऑफ मोशन की ये कंडीशन थी कि हमने इसको सेटिस्फाई करना है कि ये दो टर्म्स का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने अभी फाइंड की हैं। तो हम देखते हैं कि कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है एफ़ इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो जिस तरह से अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाई है, बिल्कुल इसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल है जो आपने करनी है। इसमें एच ये फंक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं टाइम नज़र नहीं आ रहा लेकिन एफ़ में टाइम है ये टी, तो एफ़ में ही होना चाहिए। अगर इसमें एफ़ में होगा तो फिर कंडीशन जो हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में की है वही लगेगी। अगर ये टी ना होता तो फिर हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाती। तो देन शो दैट द फंक्शन एफ़ इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये आपने चेक कर लेना। और ये सेकंड एक प्रॉब्लम है, ये इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई आपने इंटीग्रल ऑफ मोशन प्रूव नहीं करने। इसमें आपको चार फंक्शन गिवन हैं, आपने शो करना है कि ये जो ब्रैकेट ऑफ f1 f2 है वो f3 के इक्वल होगी, f2 f3 f1 के इक्वल होगी, f1 f4 0 होगी और f3 f1 f2 के इक्वल होगी। ये सिंपल आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाएं तो जो आंसर आएंगे वो आपको यहाँ दिए गए हैं जो आपने प्रूव करने हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम, एंगुलर मोमेंटम इज़ गिवन बाय आर क्रॉस पी, और इसको अगर सॉल्व करें आप तो आपके पास Lx, Ly और Lz यानी उसके तीन कंपोनेंट आएंगे विच आर गिवन बाय दीज एक्सप्रेशंस। तो ये आपने सॉल्व करके चेक नहीं करना, ये वैसे ही इसके इक्वल होते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप चेक कर भी सकते हैं। आपने जो प्रूव करना है वो ये है कि शो दैट कि जो ब्रैकेट हैं एक्स वाई की वो z के इक्वल होगी, वाई जेड की x के इक्वल होगी और z x की y कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगी। ये आपने प्रूव करना है। तो आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाएं, इनके जो आंसर्स आते जाएंगे वो खुद ब खुद ये बनते जाएंगे जो यहाँ राइट हैंड साइड पर दिए हुए हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपने ये प्रूव करने हैं। ये प्रॉपर्टीज़ में भी थे, अगर आप देख लें ये इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आपने देखी थी, तो ये आपने प्रूव करने हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। आज का लेक्चर पॉइसन ब्रैकेट्स के हवाले से था। पॉइसन ब्रैकेट्स जो हैं वो एक मैथमेटिकल टूल के तौर पर यूज़ की जाती हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और कुछ और टॉपिक्स में, तो इस वजह से हमने इनको स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।